श्रील प्रभुपाद की जय। जय। Thus far, Thus far, I have described I have described this knowledge this knowledge to you to you through analytical study. through analytical study. Now, Now, listen as I explain it listen as I explain it in terms of in terms of working without fruitive results. working without fruitive results. O son of Pritha, O son of Pritha, when you act in such knowledge, when you act in such knowledge, you can free yourself from you can free yourself from the bondage of works. the bondage of works. पपट पर शिल प्रभुपाद की जय। कौन पढ़ेगा ये? माताजी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। According to the Nikruti or the Vedic dictionary, Sankhya means that which describes things in detail, and Sankhya refers to that philosophy which describes the real nature of the soul, and Yoga involves controlling the senses. Arjuna's proposal not to fight was based on sense gratification. Forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting because he thought that by not killing his relatives and kinsmen, he would be happier than by enjoying the kingdom after conquering his cousins and brothers, the son of Dhritarashtra. In both ways, the basic principles were for sense gratification. Happiness derived from conquering them, and happiness derived by seeing the kinsmen alive are both on basis of personal sense gratification, even at sacrifice of wisdom and duty. Krishna therefore wanted to explain Arjuna that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul proper. And he explained that all the individual persons, including the Lord himself, are eternal individuals. They were individuals in past, they are individuals in present, and they will be continue to remain individuals in the future. Because all of us are individual souls eternally. We simply change our bodily dress in different manners. But actually, we keep our individuality even after liberation from the bondage of material dress. An analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Lord Krishna, and this descriptive knowledge of the soul and the body from the different angles of vision has been described here as Sankhya in terms of Nikruti dictionary. This Sankhya has nothing to do with the Sankhya philosophy of atheist Kapila. Long before the impostor Kapila Sankhya, the Sankhya philosophy was expounded in Srimad Bhagavatam by true Lord Kapila, the incarnation of Lord Krishna, who explained it to his mother Devahuti. It is clearly explained by him that Purusha or Lord or Supreme Lord is active and that he creates by looking over the Prakriti. This is accepted by the Vedas and in the Gita. Description in Vedas indicates that Lord glanced over the Prakriti or nature and impregnate it in with atomic individual souls. All these individuals are working in the material world for sense gratification, and under the spell of material energy, they are thinking of being enjoyers. This mentality is dragged to the last point of liberation when the living entity wants to become one with the Lord. This is the last snare of Maya or the sense gratificatory illusion, and it is only after many births so of such sense gratificatory activities that great soul surrenders unto Vasudev, Lord Krishna, thereby fulfilling the research after ultimate truth. किसी और को पढ़ना है या do you want to continue? Mataji, करो continue. करो फिर करो। Arjuna was already
accepted Krishna as his spiritual master by surrendering him unto him. Shishyasteham sadhiman tvam prapannam. Consequently, Krishna will now tell him about the working process in Buddhi Yoga or Karma Yoga, or in other words, the practice of devotional service only for sense gratification of the Lord. This Buddhi Yoga is clearly explained in 10th chapter, verse 10, as being direct communion with the Lord, who is sitting as Paramatma in everyone's heart. Heart. But such communion does not take place without the devotional service. One who is therefore situated in devotional or transcendental loving service to the Lord, or in other words, in Krishna consciousness, attains to the stage of Buddhi Yoga or the special grace of the Lord. By the special grace of the Lord. The Lord says, therefore, that only to those who are always engaged in devotional service out of transcendental love does He award the pure knowledge of devotion in love. In that way, the devotee can reach Him easily in ever blissful kingdom of God. Thus, the Buddhi Yoga mentioned in this verse is the devotional service of the Lord, and the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with the atheistic Sankhya Yoga enunciated by the impostor Kapila. One should not therefore misunderstand that Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the atheistic Sankhya. Or did that philosophy have any influence during that time, nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophical speculations. Real Sankhya philosophy is described by Lord Kapila in Srimad Bhagavatam, but even that Sankhya has nothing to do with the current topics. Here, Sankhya means analytical description of the body and soul. Lord Krishna made an analytical description of soul just to bring Arjun to the point of yoga or bhakti yoga. Therefore, Lord Krishna's Sankhya and the Kapila's Sankhya, as described in Bhagavatam, are one and the same. They are all bhakti yoga. Lord Krishna said, therefore, that only the less intelligent class of men make a distinction between Sankhya Yoga and Bhakti Yoga. Of course, atheist Sankhya Yoga has nothing to do with the Bhakti Yoga. Yet the unintelligent claim that the atheistic Sankhya Yoga is referred to in the Bhagavad Gita. One should therefore understand that Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness, in the full bliss and knowledge of devotional service. One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss. By such transcendental engagement, one achieves all the transcendental understandings automatically, but by the grace of Lord, and thus this liberation is complete in itself, without his making extraneous endeavors to acquire knowledge. There is much difference between work in Krishna consciousness and work for fruitive results, especially in the matters of sense gratification for achieving the results in terms of family or the material happiness. Buddhi Yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वेरी नाइस जी, बहुत अच्छे से। इतना लंबा पॉपॉट है लेकिन आपने बिना विदाउट गेटिंग टायर्ड यू रेड इट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये देखो, अभी ये श्लोक जो है 2.39, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाम शृणु। तो पहली लाइन में ही हमें क्या पता चलता है कि कृष्णा ने जो ये पूरा शरीर और आत्मा का जो कनेक्शन है वो एनालिटिकली बताया है सांख्य के हिसाब से। एनालिटिकल स्टडी मतलब क्या? अभी तक हमने आत्मा का ज्ञान कैसे लिया? हमने आत्मा की साइज की डिस्क्रिप्शन हुई, आत्मा दिखती कैसे है, शेप की डिस्क्रिप्शन हुई है, साइज की डिस्क्रिप्शन हुई है, और फिर आत्मा की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है कि आत्मा जाति का है, कहाँ से आती है एंड ऑल दैट। अगर और कई सारे हमने 360 डिग्री हमने स्टडी किया। कृष्णा ने बताया
कि आत्मा होती है तो विश्वास करो, अगर विश्वास नहीं करना तो मत करो, जैसे भी करना है, लेकिन तुमने लड़ाई करना कितना इंपॉर्टेंट है ये कृष्णा ने अर्जुन को कन्विंस किया है। तो कृष्णा ने अर्जुन को ये भी बताया, तुम लड़ाई करोगे तो कितना अच्छा होगा, तुम लड़ाई नहीं करोगे तो पाप में गिना जाएगा, लड़ाई करोगे तो वो पुण्य में भी नहीं गिनाया जाएगा, तुम पुण्य में गिना जाएगा और तुम स्वर्ग चले जाओगे। लड़ाई नहीं करोगे तो पाप में गिना जाएगा और बहुत सारे सालों तक तुम्हारी ये होगी, कीर्ति सारी मिट्टी में मिल जाएगी और तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। तो कृष्णा ने इतना इजीली बॉडी का डेस्टिनेशन बता दिया अर्जुन को कि तुम्हारा शरीर कहाँ जाएगा मृत्यु के बाद। अगर तुम लड़ाई करते हो तो स्वर्ग जाएगा, लड़ाई नहीं करते तो नर्क जाएगा। तो बॉडी के बारे में भी बताया, आत्मा के बारे में भी बताया कि तुम्हें भरोसा करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। भरोसा किया तो क्या होगा, भरोसा नहीं किया तो क्या होगा। अगर आत्मा की साइज मैंने बता दी है, तुम्हें भरोसा ही करना होगा अनुमान प्रमाण से। आंखों से तो दिख नहीं सकती आत्मा, तो तुम्हें कहीं ना कहीं मेरी बातों पे विश्वास करना होगा, और नहीं करना कोई बात नहीं, नहीं करना तो मत करो। विश्वास नहीं करोगे तो भी तुम्हें लड़ाई करना जरूरी है, क्योंकि वैसे भी अगर आत्मा नहीं होती तो शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है, तो उसमें तुम्हारा कोई लॉस नहीं है, फिर तो स्वर्ग और पृथ्वी और नर्क का कनेक्शन ही चला जाता है सारा, तो उसमें भी तुम्हारा लॉस नहीं है कई तरीके से भी। इतना बताया। फिर कृष्णा पिछले श्लोक में कहते हैं कि प्रॉफिट लॉस को छोड़ो और बस करना है इसलिए करो। ये मत सोचो कि मेरा क्या फायदा हो रहा है, मेरा क्या लॉस हो रहा है, मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, मुझसे पाप होगा या पुण्य होगा, ये सब कुछ छोड़ो और सिर्फ कृष्ण के लिए करो। ऐसे करके कृष्णा ने बोला कि लाभा लाभो जया जयो, ये सब कुछ थॉट प्रोसेस छोड़कर बस लड़ने के लिए लड़ो, क्योंकि वैसे भी ड्यूटी करनी चाहिए, रो के करो हंस के करो, ड्यूटी तो करनी बनती है। तो यहाँ पे फिर अभी कृष्णा इतना एनालिटिकल सांख्य करके आए हैं हम लोग अभी तक, यहाँ तक तो पूरा एनालिटिकल स्टडी ही चल रहा है। प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस की बातें हो रही है, कंपैरिजन की बातें हो रही है और ट्रस्ट की बातें हो रही है, ये सारी चीजें एनालिटिकल के अंदर आती है, इंटेलिजेंस के अंदर आती है। ठीक है, बुद्धि योगे त्वमेव शृणु। तो बुद्धि, जहां पे बुद्धि लगाई वहां पे क्या हो गया, फ्रूटिव रिजल्ट्स आ गए। इसलिए हम कहते हैं श्रीमद् भागवतम हृदय से सुनना चाहिए। जहां पे आप हृदय से भागवतम कथा का श्रवण करते हो, हृदय से चैंटिंग करते हो, हार्ट से चैंटिंग करते हो, दिल लगाकर चैंटिंग करते हो, दिल लगा के पढ़ाई करते हो, कोई भी चीज दिल लगा के पढ़ाई करते हैं तो वो फ्रूटिव रिजल्ट्स नहीं देती, क्योंकि हृदय में परमात्मा रहता है और परमात्मा को याद करके किया हुआ काम कर्म योग में नहीं आता। तो अभी जहां बुद्धि है, जहां पे सांख्य है, तो वहां पे फ्रूटिव रिजल्ट्स है। लेकिन कह रहे बुद्धिया युक्तो यया पार्था, बाय इंटेलिजेंस ओ सन ऑफ पृथा, कर्म बंधम हो जाता है। कर्म बंधम प्रहास्यसी, बॉन्डेज ऑफ रिएक्शन यू कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम। तो यहाँ पे कृष्णा ने कहा है कि जब आप इस नॉलेज में काम करते हो, जब आपको नॉलेज आ जाती है कि ये काम करके होने क्या वाला है, तो आप उस कर्म बंधन से बाहर आ जाते हो। तो कर्म बंधन एक ऐसी चीज है जो आपको आप सोच के करो या बिना सोच के करो काम, आप कर्म बंधन में हमेशा बंधे हो। आप चाहो नहीं चाहते ना तो भी कर्म बंधन आप पे लागू है। इट इज लाइक कोई कार से जा रहा है रोड से या फिर बाइक पे जा रहा है रोड पे, उसको ट्रैफिक रूल्स अप्लाइड है, वो चाहे मानता हो ना मानता हो इज इमटेरियल। लेकिन जितने भी लोग रोड पे गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए ट्रैफिक रूल्स मैंडेटरी है। जिसको हेलमेट नहीं पहनना वो उसकी प्रॉब्लम है, जिसको सीट बेल्ट नहीं लगाना वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन दे आर बाउंड टू फॉलो द ऑल द रूल्स दैट आर देयर ऑन रोड। वैसे ही जो भी शरीर लेकर आया है, कर्म बंधन ऑटोमेटिकली उस पे अप्लाई होता है, वो माने या ना माने। तो यहाँ पे एक ट्रांसलेशन में प्रभुपाद बता रहे हैं कि आई हैव, कृष्णा कह रहे हैं कि अभी तक तो मैंने ये सारा एनालिटिकल स्टडी से तुम्हें समझा दिया है, अब मैं तुम्हें कर्म बंधन के बेसिस पे समझाऊंगा कि कर्म बंधन वर्क कैसे करता है। और व्हेन यू एक्ट इन सच नॉलेज यू कैन फ्री योरसेल्फ। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना, कर्म बंधन,
इसके बाद आप कभी भी कोई काम नहीं करोगे जिससे कि आपको रिटर्न में पुण्य या पाप मिलेगा। आपको बस कर्म बंधम ये फिलोसॉफी समझ में आनी चाहिए। अगर ये फिलोसॉफी समझ में आ गई, देखो कृष्णा कह रहे हैं वेन यू एक्ट इन सच नॉलेज, मतलब कर्म बंधन के नॉलेज में आप एक्ट करोगे तभी जाकर आप फ्री हो पाओगे, नहीं तो फ्री नहीं हो पाओगे, कर्म बंधन से फ्री नहीं हो सकते तब तक, ठीक है। तो पॉपट बाय श्रील प्रभुपाद में प्रभुपाद कहते हैं कि निरुक्ति, अकॉर्डिंग टू निरुक्ति एक वैदिक डिक्शनरी है। संख्या, संख्या, ठीक है, ये संख्या है, सांख्य अलग है और संख्या अलग है। संख्या मीन्स विच डिस्क्राइब्स थिंग्स इन डिटेल, तो निटिग्रिटीज में जाके संख्या बात करती है। संख्या मतलब क्या होता है? संख्या रिफर्स टू फिलोसॉफी दैट डिस्क्राइब्स रियल नेचर ऑफ सोल। योगा इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द सेंसेस, तो सांख्य योग अलग है, संख्या योग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। संख्या योग वाले फिलोसोफर्स होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं, वो अलग वर्ल्ड में जीते हैं। और सांख्य योग वाले जो भागवतम को फॉलो करने वाले होते हैं, जो वैष्णव कैटेगरी में आते हैं, कृष्ण भक्तों की कैटेगरी में जो भक्ति योग फॉलो करते हैं, सांख्य योगी लोग अलग है, संख्या योगी लोग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि संख्या योगी जो है वो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं आत्मा के, और फिर योगा मतलब माइन्यूट डिटेल में जाएंगे और अपने शरीर को कंट्रोल करते रहेंगे। तो अर्जुन का प्रपोजल जो है कि नहीं मैंने लड़ाई नहीं करना, तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति पे बेस्ड है। आपने बोला मैंने स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाते वक्त बहुत पेट्रोल का खर्चा होता है, मैंने स्कूल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि स्कूल में जाने के बाद वहां पे बहुत टीचर्स को मेहनत करनी पड़ती है। अरे, आपका ये सब एक्सक्यूजेस आप इंटेलिजेंट एक्सक्यूज दे रहे हो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि आई कंट्रीब्यूट टू द ट्रैफिक ऑन द रोड, मेरी वजह से रोड में ट्रैफिक हो जाता है, मेरी वजह से जिस वैन से मैं जा रहा हूँ उसमें से पोल्यूशन होता है, और प्लैनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है पोल्यूशन की वजह से, मैंने स्कूल नहीं जाना। ऐसे करके कोई अगर एक्सक्यूज देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है, हाँ या ना? उसको तो घर बैठ के आराम करना है। यस और नो? या यस माता जी। बस सेम फिलोसॉफी है। अगर बच्चा कहता है ना मैंने स्कूल इसलिए नहीं जाना क्योंकि मैं टीचर्स को तंग नहीं करना चाहता, मैं अर्थ का पोल्यूशन बढ़ाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हमारे गाड़ी के नीचे छोटी छोटी चींटियां आके मर जाए, तो ये इंटेलेक्चुअल तो आर्ग्यूमेंट है बच्चे की, लेकिन सारी इंटेलिजेंस जो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में जा रही है, उसको तो घर पे बैठ के आराम करना है, कुछ ना कुछ और करना है। तो ये क्या हो गया? सेंस ग्रेटिफिकेशन। आपने कितनी भी इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट पुटअप करी बुद्धि लगाकर, लेकिन फिर भी वो आपको इंद्रिय तृप्ति की ओर ही ले जा रहा है। मान के चलो बच्चे ने डिसाइड किया मैं दिन भर घर पे पढ़ाई करूंगा, लेकिन कंटिन्यूअस तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर टाइम पास भी करेगा, सोएगा भी, थोड़ा बहुत टीवी देखेगा, घूमेगा, इधर उधर खाएगा, लेकिन जितना डिसिप्लिन से स्कूल में चल रहा है उतना डिसिप्लिन तो घर में नहीं आएगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन है। और कितनी भी पढ़ाई कर लो, बच्चा 6 घंटे कंटिन्यूअसली घर में पढ़ाई कर रहा है और ऐसे लग रहा है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहा, लेकिन वो भी इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि उसमें स्कूल वाली मेहनत है नहीं। स्कूल में जो इधर से उधर जाना है, पीटी पीरियड में एक्सरसाइज करनी है, खेलना है, टीचर्स की बात माननी है, यहाँ से वहां जाकर कुछ काम करने हैं, अगर स्कूल में आप लीडर हो तो अलग अलग टीचर्स के काम करने हैं। तो वो वाली मेहनत से तो वो बच्चा बच गया है ना। अगर मेहनत से बच के घर में बैठा है तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है। इस तरीके से अर्जुन जो भी बोल रहे हैं ना कि मैंने नहीं फाइट करना, वो सारी इंद्रिय तृप्ति के अंडर आता है। कोई कहता है मैंने ऑफिस नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? ऑफिस के लोग बुरे हैं, ऑफिस के लोग डांटते हैं, ऑफिस के लोग मेरे बारे में बात करते हैं, ऑफिस के लोग तंग करते हैं, कुछ भी बोलो। अच्छा उसके चला गया, नहीं नहीं ट्रैफिक बहुत है, जाने में इतना टाइम लगता है, आने में इतना टाइम लगता है, मैंने ऑफिस ही नहीं जाना। तो उसके पीछे पूरी तरह ऑल सेड एंड डन आप 100 एक्सक्यूज लेके आओ, लेकिन सब कुछ आएगा इंद्रिय तृप्ति पे ही, उसको बस इंद्रिय तृप्ति करनी है। आई बात समझ में?
तो ये जो योगा है, अर्जुन जो है वो कह रहे हैं कि मुझे फाइट नहीं करना, बट वो पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति है। प्रभुपाद इज नॉट अप्रिशिएटिंग इट मच। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन तो अपनी प्राइम ड्यूटी भूल रहा है। कोई इंसान ऑफिस जाने से मना कर रहा है, स्कूल जाने से मना कर रहा है बच्चा, उसकी तो प्राइम ड्यूटी है, उसने तो जाना चाहिए, लेकिन वो फॉरगेट भूल गया है। उसको क्या करना, ही वांटेड टू सीज फाइटिंग। अब अर्जुन ने कहना कि फाइट ही बंद करो, ये तो ऐसे हो गया, बच्चे ने कहना स्कूल बंद कर दो, और किसी इंसान ने कहना सारे ऑफिसेस बंद कर दो क्योंकि मुझे घर पे बैठना है। तो ये थोड़ा इलॉजिकल भी है, बुद्धि को भी डाइजेस्ट नहीं होता जो अर्जुन कह रहे हैं। तो forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting. तो प्रभुपाद कह रहे हैं because he thought that by killing his relatives he would be happier. By not killing he would be much happier. तो अगर आपको किसी को ना मार के हैप्पी होना है, जो आपकी ड्यूटी है, आप क्षत्रिय हो, आपकी ड्यूटी ना करके आपको हैप्पी होना है और फिर किंगडम एंजॉय नहीं करना, तो ये तो वही बात हो गई ना कि मैंने पढ़ाई नहीं करना और मुझे हैप्पी होना है। बाय नॉट किलिंग हिज रिलेटिव्स एंड किन्समैन ही वुड बी हैप्पियर। तो वो वापस इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सोच रहा है, और उसको उसको पता है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आए, उसको 90% आए सपोज, तो वो ज्यादा खुश होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, मुझे 99% का सुख इतना हैप्पीनेस नहीं देगा जितना मुझे हैप्पीनेस देगा कि मैं कार से जाके पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करके आया, और मैंने कीड़ों मकोड़ों को गाड़ी के नीचे नहीं मारा, और मैंने टीचर्स से मेहनत नहीं कराई। उसकी हैप्पीनेस मुझे ज्यादा है एज कम्पेयर टू 99% लाने की। तो ये तो एकदम ही प्रभुपाद कहते हैं कि ये बिल्कुल ही मतलब इंद्रिय तृप्ति है, जहां पे आप वहां से खुशी डिराइव करना चाहते हो, जहां पे इनएक्शन है, जहां पे आपको कुछ करना ही नहीं है और दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। मैं तो उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, मैं तो उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, मैंने इसका ने बुरा नहीं करना, मैंने उसका बुरा नहीं करना, ऐसे करके ब्लेम करके खुद इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। तो प्रभुपाद इज बीइंग वेरी दिस थिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रभुपाद ऐसे ये नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं कर रहे अर्जुन का बिल्कुल भी बिहेवियर जो है, वो प्रभुपाद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं बोथ वेज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज अप्लाइड। मतलब अगर वो लड़ाई करता है और पूरी तरह सारा राज्य को एंजॉय करता है, वो भी इंद्रिय तृप्ति है। लड़ाई नहीं करता और घर पे बैठा रहता है, संन्यास ले लेता है, वो भी इंद्रिय तृप्ति है। उसमें कोई तारीफों वाली बात नहीं है कि सब कुछ छोड़ के घर पे बैठा है। कुछ लोग होते हैं ना, मैंने देखा रिसेंटली, एक किसी ने तो कोई और संप्रदाय है, तो उसने संन्यास ही ले लिया 11 साल में, या 12वीं साल की उम्र में उसने संन्यास ले लिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो आसपास के लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं उसकी कि देखो देखो देखो, इसने सब कुछ त्याग दिया, इसने सब कुछ त्याग दिया, इसने संन्यास ले लिया वगैरह। तो ये बताते वक्त भी इंद्रिय तृप्ति है इनके अंदर कि अरे देखो इतने कम उम्र में त्याग करा, ये करा वो करा। उसका तो उम्र ब्रह्मचारी है, अभी तो ज्ञान उसने अर्जित करना चाहिए। इस उम्र में संन्यास लेना का मतलब है कि उसके पास सारा ज्ञान आ गया है। नाउ दैट पर्सन इज रेडी फॉर दिस थिंग, पूरी तरह संन्यास फॉलो करने के लिए रेडी हो गया। उसके तो स्टेप्स ही कैंसिल हो गए, अभी तक तो उसकी उम्र भी नहीं आई डिसीजन लेने की कि उसने गृहस्थ आश्रम में एंटर करना है या नहीं करना। उससे पहले ही सेंस ग्रेटिफिकेशन चल रही है, तारीफें बटोरी जा रही है। तो ये सारा जो होता है ना, चाहे आप अपनी ड्यूटी फॉलो करो या ना करो, फॉलो करके भी आप अपनी ही इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, फॉलो ना करके भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। तो कृष्णा कह रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्करिंग एंड हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम सीइंग द रिलेटिव्स अलाइव, दोनों पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के अंडर आ रहे हैं। जो भी खुशी होगी, रिश्तेदारों को जिंदा देखकर जो खुशी होगी, वो भी इंद्रिय तृप्ति के अंडर है। रिश्तेदारों को मार के खुद भाई राजा बन गया, वो देखना भी इंद्रिय तृप्ति के।
सो इवन एट द सैक्रिफाइस ऑफ विजडम एंड ड्यूटी, आप ड्यूटी करो ना करो, आप ड्यूटी अगर छोड़ के आपने कोई भी आनंद ले लिया ना, वो इंद्रिय तृप्ति में है। आपकी ड्यूटी स्कूल जाना है, स्कूल जाना छोड़कर आपने कुछ भी किया, वो इंद्रिय तृप्ति है। भले आपने दिन रात पढ़ाई करी स्कूल छोड़ के, फिर भी वो ये है। एग्जाम आपने देना बंद कर दिया, एग्जाम बंद करके आपने कुछ और करना शुरू किया, वो भी इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो। आपकी ड्यूटी है जो भी करना है। सिमिलरली कुछ लोग कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। हम विवाह नहीं करेंगे तो आपकी तो ड्यूटी है, आपने गृहस्थ आश्रम में जाना है ना, आप भक्ति कर रहे हो। आप भक्ति में भी कुछ खास इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो, आप कुछ और ही करना चाहते हो, आप दुनिया घूमना चाहते हो, इधर उधर घूमना चाहते हो, और कहते हो मुझे ये कंट्री देखनी है, वो कंट्री देखनी है, पूरा इंडिया देखना है। तो आप अपनी ड्यूटी को गिव अप कर रहे हो। अभी आपकी उम्र विवाह की है, लेकिन आपने क्या करना है, मुझे ये घूमना है, मुझे वो घूमना है, मुझे ये करना है, वो करना है। अब आप ड्यूटी सैक्रिफाइस करके आप कुछ भी करो, इंद्रिय तृप्ति है। अब आपके मान लो माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, माता पिता का ख्याल रखने की उम्र है, अब वो छोड़ के वापस आप घूमो फिरो, कितना भी घूमो फिरो, और अपने आप को आपने प्रूव कर लिया है कि हाँ मैं तो बड़ा सक्सेसफुल हूँ, लेकिन आप ड्यूटी नहीं करोगे तो आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। वैसे कई सारी बहुएं होती है, उनको नहीं करना होता, सास ससुर की सेवा नहीं करनी होती, ड्यूटी है ना उनकी, लेकिन नहीं करना, ड्यूटी नहीं करनी। अब ड्यूटी नहीं कर रहे तो वो इंद्रिय तृप्ति है। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप उसके ऊपर कोई भी कारण लगाओ, अरे वो लोग ऐसे है वैसे है, कोई कोई होता है अपनी पत्नी को ही छोड़ के चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तो ड्यूटी छोड़ देते हैं। ड्यूटी छोड़ के अब आप वो, जहाँ एक इंसान जाकर कितना भी दान कर रहा हो, पूरी दुनिया में घूम रहा हो, गरीबों के साथ बातें कर रहा हो, गरीबों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, वो उस इंद्रिय तृप्ति में ही गिना जाएगा, क्योंकि वो कोई ना कोई ड्यूटी छोड़कर आया है। सो एट द सैक्रिफाइस ऑफ विजडम एंड ड्यूटी, anything you do comes under sense gratification। आई बात समझ में? तो ड्यूटी सैक्रिफाइस करनी चाहिए क्या कभी? करनी चाहिए? नो माता जी। नहीं। आपको पता है ये सारे जितने भी होते हैं सोल्जर्स होते हैं, इनके माता पिता कभी सर्जरी से जा रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम इनके घर में चल रहे होते हैं, लेकिन जब इंडिया लड़ाई डिक्लेयर कर लेता है, इन सबको छुट्टी से बुलाया जाता है, तो इनके पीछे भी बहुत सारी फैमिली कमिटमेंट्स होती है। ये सारी कमिटमेंट छोड़ के देश के लिए आ जाते हैं लड़ाई के लिए, तो वो अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए उनकी बहुत ज्यादा पूरे समाज में इज्जत होती है। जो कोई ड्यूटी को गिव अप करता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। किसी ने अगर बोल दिया मैं लड़ाई पे नहीं आऊंगा क्योंकि माँ की आंख का ऑपरेशन है, बस वहीं पे उसकी इज्जत चली गई, फिर उसको वापस उसको जगह नहीं मिलेगी ना, किसी भी मतलब सेक्टर में उसको बहुत ज्यादा उसकी कीर्ति नहीं होगी, उसकी अपकीर्ति होगी। तो ये तो काम वैसे ही अर्जुन यही कर रहा था। अर्जुन वॉज गिविंग एक्सक्यूज लाइक नहीं नहीं मैं लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि ये काम है, क्योंकि वो काम है, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि वैसा है, ये गलत है, मारना गलत है। तो ये वही काम हुआ कि मम्मा का ऑपरेशन है इसलिए मैं लड़ाई पे नहीं आ सकता, भले देश जल के मर जाए। तो ये वाला जो थॉट है ना, ये है सैक्रिफाइस ऑफ ड्यूटी। सैक्रिफाइस ऑफ ड्यूटी करके आप बहुत बड़ा कर्तव्य अगर कर रहे हो, मम्मी पापा के साथ हॉस्पिटल में बैठे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो भी अर्जुन को वो शोभा नहीं देगा, क्योंकि अर्जुन की अभी प्राइमरी ड्यूटी लड़ाई करना है। अगर वो ये लड़ाई को क्विट करके संन्यास भी धारण कर लेता है, करोड़ों करोड़ों लोगों को भागवतम भी सुना लेता है वो, तो भी फायदा नहीं। अर्जुन अगर हिमालय में जाके उसने 10,000 माला जाप किया लेकिन लड़ाई नहीं करी, तो भी वो इंद्रिय तृप्ति के अंडर काउंट होगा। अगर उसने अपनी ड्यूटी छोड़ के 10,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवतम सुनाया, तो भी वो इंद्रिय तृप्ति में ही आ जाएगा, क्योंकि वो ड्यूटी छोड़कर आया है। अगर अर्जुन ने ये सब कुछ ड्यूटी छोड़ी
और उसने सारे गरीबों का भला करने के लिए गरीबों में जाके जीने लग गया। उनको पढ़ाई लिखाई सिखाई उसने, पढ़ना कैसे, लिखना कैसे, तलवार कैसे चलानी है, खेती कैसे करनी है, पानी कैसे भरना है, ये सारा ज्ञान उसने गांव के हजारों लोगों को बहुत अच्छे से एडवांस कराया, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी कराई। तो भी वो इंद्रिय तृप्ति में ही आएगा। वो कहीं से भी उसको उसकी अप्रिसिएशन नहीं होगी। ऊपर के लोगों के लोग उसको नीचा ही देखेंगे, क्योंकि उसने क्या किया है, सैक्रिफाइस ऑफ विजडम एंड ड्यूटी। अपनी ड्यूटी छोड़ के अब वो बड़े से बड़ा काम करे, जिसको समाज में बहुत इज्जत है, फिर भी उसका क्या होगा, वो इंद्रिय तृप्ति में ही गिना जाएगा, एंजॉयमेंट में ही गिना जाएगा। ठीक है, गॉट इट। Now Krishna wanted to explain to Arjuna that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul. He explained all that individual persons, including Lord himself, are eternal angels. तो कृष्णा ने ना आत्मा का प्रॉपर ज्ञान दिया कि भाई आप अपने दादाजी को मारोगे तो आत्मा तो मर नहीं रही है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इतने सारे इटर्नल इंडिविजुअल्स है, लॉर्ड भी जो है, भगवान जो भी है, भगवान भी एक परमात्मा है, सुपर सोल है। तो भगवान ने अपने बारे में भी बताया कि वो भी कैसे आत्मा है, और उनकी आत्मा में और जीवात्मा की आत्मा में फर्क क्या है। भगवान स्वयं परमात्मा है और एक जीवात्मा है, दोनों में क्या फर्क होता है ये भी बताया कि दोनों इंडिविजुअल है। दोनों भी बिल्कुल ही दोनों की इंडिविजुअलिटी अलग है, ऐसा नहीं कि दोनों बिल्कुल एक जैसे है। दो आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती, हर एक जन की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। ऐसे करके कृष्णा ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये जो होती है, ये इंडिविजुअल्स पास्ट में भी, पहले से भी वो इंडिविजुअल थे, अभी भी इंडिविजुअल है, पास्ट में भी इंडिविजुअलिटी थी उनके पास, अभी भी इंडिविजुअलिटी है, और फ्यूचर में भी इंडिविजुअलिटी रहेगी ही रहेगी। मतलब हम आत्मा है, परमात्मा कभी नहीं बन सकते, और परमात्मा है वो आत्मा के जैसे कभी बन नहीं सकती। परमात्मा के पास हमेशा ही अनलिमिटेड नॉलेज रहेगा, हमारे पास लिमिटेड नॉलेज रहेगा। परमात्मा के पास अनलिमिटेड सौंदर्य रहेगा, हमारे पास लिमिटेड रहेगा। इस तरीके से कृष्णा ने बताया कि सब लोग कैसे इंडिविजुअल है, कोई भी एक जैसा नहीं है। सो बिकॉज ऑफ ऑल अस आर इंडिविजुअल सोल्स आर इटरनली, वी सिंपली चेंज आवर बॉडीज ड्रेस इन डिफरेंट मैनर। तो कृष्णा ने बताया कि प्रभुपाद बता रहे, अभी तक तो कृष्णा देखो एनालिटिकल स्टडी कैसे बताते आ रहे हैं कि आज सारी आत्माएं इंडिविजुअल है, और सारी आत्माएं बस ड्रेस बदलती है, बॉडी बदलती है, बट अपनी इंडिविजुअलिटी कहीं पे भी जाए वो रिटेन करते हैं। हम कहीं पे भी जाए, मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ रहेगा, शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा की साइज वही छोटी सी रहेगी, 1/10 ऑफ द 10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ द हेयर, साइज भी उतनी ही रहेगी, वैसे ही रहेगा। आत्मा कटेगी नहीं, आत्मा जलेगी नहीं, आत्मा कभी भी भीगेगी नहीं, और आत्मा सूखी नहीं जाएगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आत्मा की तो सेम ही रहेगी, चाहे आप 1000 ड्रेस बदल लो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबकी इंडिविजुअलिटी तो हमेशा ही रिटेन होगी, आप 1000 ड्रेस बदलो, 1000 बार जन्म ले लो, लाखों बार जन्म ले लो, आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी इंडिविजुअलिटी वैसे ही रहेगी। इवन आफ्टर द लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ मटेरियल ड्रेस, मर जाओगे तो भी आपकी आत्मा की प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। इसको कहते हैं एनालिटिकल स्टडी। सो एन एनालिटिकल ऑफ स्टडी ऑफ सोल एंड बॉडी हैज बीन वेरी ग्राफिकली एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। ग्राफिकली मतलब कृष्णा ने सब कुछ पिक्चर बना के एक्सप्लेन किया है अर्जुन को कि देखो, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देखो आत्मा चाइल्डहुड से लेके बड़े होने तक जा रही है, बूढ़े होने तक आत्मा शरीर से ट्रांसफर होती ही रही है, मृत्यु में आत्मा का एक ट्रांसफर ही होता है। तो कृष्णा ने डेफिनेशन दी है मृत्यु की, आत्मा कैसे ट्रांसफर होती है, ग्राफिकली एक्सप्लेन किया ना। बिल्कुल एक ऐसी मूवी बनाई है, बेबी से लेके मरने तक आत्मा ट्रांसफर हो रही है, बॉडी जैसे जैसे बदल रही है आत्मा ट्रांसफर होती जा रही है। उसमें आत्मा तो रो नहीं रही है, मैं बड़ा क्यों हो रहा हूँ, मेरी हाइट क्यों लंबी हो रही है, कोई रो नहीं रहा है, और ये मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ, कोई नहीं रो रहा, फिर मृत्यु के वक्त क्यों रोते हो। तो कृष्णा ने एनालिटिकल स्टडी करके बहुत अच्छे से समझाया, आत्मा का ज्ञान ही बड़े अच्छे से दिया है। और अभी आप प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव नॉलेज ऑफ सोल एंड बॉडी अलग अलग एंगल से, विजन से
डिस्क्राइब्ड है इन सांख्य इन टर्म्स ऑफ निरुक्ति डिक्शनरी। तो ये अलग से निरुक्ति डिक्शनरी है जहां पे वापस आत्मा पे बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। सांख्य हैज नथिंग टू डू विद सांख्य फिलोसफी एट द अथीस्ट कपिला। तो संख्या योग जो कहते हैं ना लोग कि संख्या योग में कहीं पे भी कृष्णा का एक्सप्लेनेशन नहीं है, संख्या योग वाले लड़ाई करने आते हैं, धर्म सभा जब होती है ना तो वहां पे आर्ग्यूमेंट पुटअप करते हैं। कहाँ है निरुक्ति के हिसाब से कृष्ण का नाम है, कहाँ वहां पे बताओ। संख्या फिलोसॉफी में कहीं पे भी कृष्ण का नाम नहीं आया, तो आप कृष्ण कृष्ण क्यों करते हो। भगवत गीता में भी संख्या योग बताया गया है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण अपना नाम, कृष्णा तो एक बस कॉन्सेप्ट है, कृष्णा तो बस गुणों का भंडार है। वो गुण हमारे अंदर आ जाए हम भी कृष्ण बन जाए। श्री राम बस गुणों का एक कॉन्सेप्ट है, वो सारे गुण हमारे अंदर आ जाए फिर हम भी भगवान बन जाएंगे, और भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ जो है संख्या में आत्मा को इतनी इसमें बताया गया है, छोटी छोटी चीजें उसकी ऐसे डिस्क्राइब की है, और फिर उसकी कॉमनैलिटी निकाली है परमात्मा के साथ, और फिर बताया है कि आत्मा अगर ऐसा काम करती है तो परमात्मा कैसे बन सकती है। ऐसे करके ये संख्या फिलोसॉफी अथीस्ट ने निकाली है, नास्तिक ने निकाली है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो जो नास्तिक वाली जो फिलोसॉफी है ना, संख्या फिलोसॉफी, वो अलग है, और हमारा भागवतम का जो फिलोसॉफी है वो अलग है। अब संख्या फिलोसॉफी भी एक कपिला ने निकाली हुई है, तो वो लॉर्ड कपिला नहीं है जो देवहूति के बेटे हैं। ये कपिला मुनि अलग है, कपिला मुनि अलग है, इसलिए हम कभी श्रीमद् भागवतम में लॉर्ड कपिला को कपिला मुनि के नाम से हम कभी बुलाते नहीं है। हम भगवान कपिला करके, लॉर्ड कपिला करके ऐसे एड्रेस करते हैं, लेकिन हम कपिला मुनि नहीं बोलते, क्योंकि जो कपिला मुनि है उन्होंने आत्मा पे पीएचडी कर रखी है, पूरी तरह आत्मा पे उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से यूज किया है, लेकिन कहीं से भी हृदय का कोई कनेक्शन नहीं है उनकी फिलोसॉफी में। जहां हार्ट नहीं वहां कृष्णा नहीं, जहां कृष्णा नहीं वहां हार्ट नहीं। तो ये जो कपिला मुनि है जो नास्तिक है, और उन्होंने जो संख्या योग लिखा है उसमें कृष्ण का उल्लेख है नहीं, और कृष्ण का उल्लेख है नहीं तो प्रभुपाद कहते हैं कि वैसे वाले संख्या योग से हमें कोई लेना देना नहीं है। इम्पोस्टर कपिला संख्या, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर कौन सा इंसान होता है, जो बहरूपिया होता है, अपने बहुत अच्छे कपड़े पहन के आता है, मीठी मीठी बातें करता है, सत्व गुण में अपने आप को दिखाता है, गुस्से में, गुस्सा जिस सिचुएशन में गुस्सा आ सकता है वहां ऐसे दिखाएगा जैसे मुझे तो गुस्सा क्या होता है पता भी नहीं, मैं तो बड़ा शांत इंसान हूँ। फिर अपने आप को दुखों के परे है ऐसे दिखाएगा। दिखावा एक्टिंग के 100 नंबर होते हैं इसके अंदर। तो ये इम्पोस्टर लोग जो होते हैं वो दिखाते वक्त अपने आप को परफेक्ट दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे ये ब्रह्म ज्योति में ही ऑलरेडी स्थित हो चुके हैं। चेहरे पे हमेशा स्माइल रखेंगे, ये लोग मेडिटेशन के वक्त प्रैक्टिस करते हैं स्माइल करना। इनके पास एक्चुअली ये होता है, मेथड होती है कि जिससे पूरा दिन चेहरा स्माइली कैसे दिखे। इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सुबह सुबह उठ के आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे और स्माइल करते करते मेडिटेशन करेंगे। तो होगा क्या, जो भी इनसे मिलेगा वो कहेंगे अरे कितने अच्छे हैं ना, हमेशा स्माइल करते हैं, इनको किसी चीज का दुख नहीं होता, ये हमेशा बहुत ज्यादा पहुंचे हुए इंसान हैं, इनके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलता है। इन लोगों को इम्पोस्टर कहा जाता है। इम्पोस्टर मतलब क्या, जो खुद भगवान बनना चाहते हैं तो कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो लॉन्ग बिफोर इम्पोस्टर्स कपिला सांख्या, तो ये इम्पोस्टर कपिला जो था उसने बहुत ज्यादा अपना बुद्धि यूज करके इतनी अच्छी लिखने में आर्टिस्टिकली लिखा, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे, और आत्मा को बहुत ही लॉजिकली साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की उसने कोशिश करी। और बहुत अच्छे से लिखने के बाद उसकी तारीफ भी बहुत हुई, लोग फॉलो करने लगे उसको। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो इम्पोस्टर कपिला ने अपनी एक फिलोसॉफी निकाली है, जिसमें संख्या योग निकाला है, जिसमें वो कभी भी कृष्ण के बारे में बात ही नहीं करता, सिर्फ आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, दो ही चीजें बात करता है वो। कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेता ये, कृष्ण का नाम लेने से इसको क्या थोड़ा सा इसका अहंकार कट जाएगा, क्या लोग कृष्ण को मानने लग जाएंगे।
और इस कपिला को कम समझने लगेंगे। तो इसने खुद भगवान बनने के लिए कृष्णा को ही माइनस कर दिया और सिर्फ आत्मा परमात्मा की। ये तो ऐसे हो गया कि कल को हम बुक लिख लेते हैं सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता पे, और उसमें पूरी बुक में हम कृष्णा का नाम ही नहीं लेते, और हम बताते हैं कि आत्मा होती कैसे है, देखो देखो, परमात्मा होती कैसे है, देखो देखो, ये गुण होते हैं, देखो देखो। ऐसे करके हम बुक लिखेंगे तो हम क्या होंगे, हम इम्पोस्टर होंगे, क्योंकि हमने कहीं पे भी नहीं बताया आत्मा का और परमात्मा का कृष्ण के साथ संबंध क्या है। हमने संबंध ज्ञान स्थापित नहीं किया, इसलिए फिर हम क्या बन जाएंगे, इम्पोस्टर, ढोंगी बन जाएंगे हम। तो ये ढोंगी लोग होते हैं। तो ये जो कपिला मुनि जो है, जो संख्या योग लिखते हैं, वो ढोंगी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सांख्य फिलोसॉफी तो एक्चुअल में कहाँ पे लिखी गई है, श्रीमद् भागवतम ओरिजिनल अगर आपको पढ़ना है तो वो लॉर्ड कपिला, जो कृष्ण भगवान स्वयं अवतार लेकर आए थे, कृष्ण खुद आए थे कपिला बनकर, और खुद आके इसको करेक्ट किया था। उन्होंने सांख्य फिलोसॉफी का करेक्शन किया था, खुद बताया था इसमें कि एक्चुअल सांख्य योग तो मतलब ये है जिसमें आप कृष्ण भगवान से कनेक्ट होते हो। देवहूति माता को उन्होंने सिखाया कि कृष्ण भगवान की शरणागति कैसे लेनी है, अपने घर वालों से अनासक्त कैसे होना है। देवहूति माता बहुत अटैच थी कर्दमा मुनि से, पति से अटैच थी, बेटियों से भी बहुत अटैच थी, और अपने परपोतों से भी बहुत अटैच थी। एक मिनट। हाँ, चल रही है। तो सांख्य योग में, श्रीमद् भागवतम में लॉर्ड कपिला जो है वो बता रहे हैं कि अनासक्त कैसे होना है अपनी फैमिली से, और कृष्ण भगवान में मन कैसे लगाना है। ये सारी चीजें लॉर्ड कपिला ने बताई, लेकिन जो कपिला मुनि है जिन्होंने संख्या योग लिखा, उन्होंने नहीं बताई। इसलिए इन दोनों में प्रभुपाद डिफरेंस बता रहे हैं कि ये श्लोक को मिसअंडरस्टैंड करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। सांख्य सांख्य ये वर्ड है ना, इस वर्ड को लेकर कपिला मुनि के जो फॉलोअर्स है, संख्या योग करने वाले, इस वर्ड को लेकर कहते हैं कि भगवत गीता तो बिल्कुल वही सिखाती है जो हम सिखाते हैं। तो ये सांख्य ये वर्ड लेते हैं और कहते हैं देखो देखो, कृष्णा भी कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा सिर्फ इतना ही सच है, बाकी कुछ सच नहीं है। कृष्णा भी कह रहे हैं एषा ते वेता सांख्ये, एक लाइन यूज करेंगे, बुद्धि योगे त्वयं शृणु, इतनी, ये फर्स्ट लाइन यूज करेंगे और भगवत गीता को मिसअंडरस्टैंड करके बहुत सारे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब आई बात समझ में, क्यों बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद ये सब डिटेल में? गॉट इट और नॉट? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नहीं माता जी। नहीं ना? आपके सामने सांख्य योग करने वाले भी बहुत लोग आएंगे। जब आप लोगों को सिखाना शुरू करोगे ना भगवत गीता, फिर आपके कभी कॉलेज जाओगे, कभी इधर उधर जाओगे और सिखाओगे, तो सांख्य योग वाले लोग आएंगे और आपके साथ डिबेट करेंगे और बोलेंगे भगवत गीता में तो कृष्णा ने पूरा सैंक्शन दिया है, ऐशा ते बीता सांख्य बुद्धि योगे। तो आपके पास, वो बोलेंगे आपके पास बुद्धि नहीं है, इसलिए आपको आत्मा परमात्मा एक कैसे हो जाती है इसका ज्ञान नहीं है, ऐसे कहेंगे। तो ये पूरा वो बोलेंगे कि देखो देखो, आपको आत्मा परमात्मा का जब तक ज्ञान नहीं आता तब तक आप कर्मों के बंधन में फंसे रहोगे। ऐसे करके आपको मिसअंडरस्टैंड करने के लिए ये श्लोक कोट करेंगे। ये तो सिर्फ एक भक्ति योगी को पता होता है इस श्लोक का मतलब क्या है, क्योंकि 2.39 एक ऐसा श्लोक है जो इंडिपेंडेंट श्लोक नहीं है। 2.39 श्लोक है, वो 2.38 पे डिपेंड करता है। ये श्लोक एक कंटिन्यूअस श्लोक है। 38 और 39 इकट्ठे श्लोक आकर भगवत गीता का एक ये बनते हैं, फाउंडेशन बनते हैं। लेकिन लोग रैंडमली 2.39 उठाते हैं और ऐसे सामने बीच में से ये श्लोक उठाकर प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुप्रीम है, इन दोनों का, दोनों एक ही है, ये दोनों आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये प्रूव करने में पूरी जान लगा देते हैं सिर्फ ये श्लोक। और फिर कहते हैं कि इट इज रिटन इन भगवत गीता, और भगवत गीता में कहा गया है, भगवत गीता हमारा शास्त्र है, ग्रंथ है,
उसको मानना चाहिए, इसलिए आप भी मानो। और पूरे श्लोक में से यहाँ पे कृष्णा को माइनस कर देते हैं। दैट्स वाई श्रील प्रभुपाद इज क्रिटिसाइजिंग कपिला मुनि का सांख्य योग, क्योंकि कपिला मुनि के सांख्य योग को फॉलो करने वाले आकर पूरी तरह भगवत गीता को मिसअंडरस्टैंड करके लाखों लाखों लोगों को फिर मिसगाइड कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये सांख्य योग कौन सा सांख्य योग है। ये वाला जो सांख्य योग है वो लॉर्ड कपिला का सांख्य योग है, श्रीमद् भागवतम में रियल सांख्य योग बताया गया है। दूसरा जो संख्या योग है, जो इतनी बड़ी बुक आती है, उसका और श्रीमद् भागवतम के सांख्य योग का कोई कनेक्शन नहीं है। भगवत गीता में जो सांख्य योग बताया गया है वो श्रीमद् भागवतम को कनेक्ट करता है, ना कि कपिला मुनि के संख्या योग को कनेक्ट करता है। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं माता जी। क्लैरिटी आ गई? तो कभी हाँ माता जी। हाँ, तो कभी डरना नहीं। ऐसे लोग ऐसे रैंडम अगर आपके सामने आर्ग्यूमेंट लेकर आ गए ना, तो उस आर्ग्यूमेंट के सामने आपको लॉर्ड कपिला, देवोती माता, लॉर्ड कपिला ने क्या प्रचार किया, क्यों बताया, ये सब कुछ आपको देवोती माता की नजर से बताना आना चाहिए कि देवोती माता को लॉर्ड कपिला का सांख्य योग सुनकर क्या प्राप्ति हुई, मोक्ष प्राप्ति कैसे हुई। उन्होंने डिटैचमेंट आ गया अपनी फैमिली से, और कृष्ण भगवान के चरणों में उनका दिल लग गया। वो मेडिटेट करना सीख गई कृष्णा के लोटस फीट पे, और कृष्णा की पूरी बॉडी पे मेडिटेट करना लॉर्ड कपिला ने सिखाया। संख्या योग में कपिला मुनि नहीं सिखाते कृष्णा पे मेडिटेट करना, लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो लॉर्ड कपिला ने सांख्य योग सिखाया है, उसमें पूरी बॉडी पे मेडिटेट करना सिखाते हैं लॉर्ड कपिला। इसलिए श्रीमद् भागवतम का संख्या योग जो है, सांख्य योग है, वो ज्यादा लेजिटिमेट है, ज्यादा बोनाफाइड है एज कम्पेयर टू कपिला मुनि का। ओके, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय। माता जी।